हेलो, वेलकम टू तौरेत। माय नेम इज साइमा सुल्तान और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लैट पीजी 2023 को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार क्लैट पीजी का एग्जाम 18 दिसंबर 2022 को शेड्यूल है फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। अगले साल के सेशन के लिए, दैट मीन्स 2023 में जो एडमिशन्स होंगे उसके लिए हमारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 18 दिसंबर 2022 को। So approximately we have 20 days left. अभी से हमारे पास around 20 days हैं for our preparation. Okay. So Toret is conducting live classes on different subjects of law and we have named it as Raftar series. So ये जो रफ्तार सीरीज है, इट इज अ क्रैश कोर्स जहां पर हम लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं लॉ सब्जेक्ट्स पर, जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दोज सब्जेक्ट्स. ओके. So now let us proceed ahead. Before that, let's see how Toreth is helping you. Toreth आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइव क्लासेस. ये लाइव क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं एंड दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस को फॉलो करना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो अप कर सकते हैं. यू कैन सब्सक्राइब इट एंड यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस. Okay, so we will try to cover each and every subject which is a part of the syllabus. क्लैट पीजी के सिलेबस में अप्रोक्सीमेटली 13 सब्जेक्ट्स हैं. In these 13 subjects, there are certain very important topics. So, उन important topics पे हम discussions कर रहे हैं in live classes में. One subject we have already completed so far, contract law, and currently we are on CRPC, and this is also about to get over in a few sessions. Okay. So अगर आपको इस सब्जेक्ट की क्लासेस देखनी है तो आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं एंड इफ यू वांट टू टेक अप क्लासेस फॉर सीआरपीसी यू कैन follow up the classes that are now being conducted. Okay. Second and third thing that we are providing is related to the study material. So study material में सबसे important aspect है mock test. बिकॉज अगर आपने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, आपको लगता है आपने सारे सब्जेक्ट्स के important areas को read out कर लिया है and you think you are well prepared to appear in the exam, then the next thing that comes up is testing your knowledge and memory. So उस knowledge को test करने के लिए it is important that you appear in mock test. So ये जो mock test आपको provide होंगे ये latest pattern पर हैं. Latest pattern से I mean these questions will be based on passages. So आपको MCQs दिए जाएंगे and in MCQs का basis होगा certain passages, कुछ text provided होगा आपको, उसके base पर questions होंगे. Okay, just like they are asked in actual examination. And ये जो passages हैं आपके ये होंगे on latest developments of 2022. 2022 में जो भी latest development हुए हैं which are important for 2023 एग्जाम, इस वाले एग्जाम के लिए जो भी आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन एरियाज से रिलेटेड आपको पैसेजेस मिलेंगे इन मॉक टेस्ट में. सो इट इज बेसिकली ऑन द सेम पैटर्न एज द क्लैट कंसोर्शियम इज गोइंग टू गिव अप द क्वेश्चन पेपर. ओके, उसी पैटर्न पर ये मॉक टेस्ट होंगे. नेक्स्ट थिंग इज नोट्स. तो अगर आपको लगता है कि यू हैव लेस टाइम टू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट, तो आपको चाहिए कि you have certain ready material for reading instead of going through the textbook. अगर टेक्स्ट बुक रीड करने का टाइम नहीं है आपके पास तो आप नोट्स के थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. ओके, सो अगर आपको ये दोनों स्टडी मटेरियल चाहिए so you can write to us in the comment section and we will revert back to you. For live classes you can directly attend the classes on YouTube or go back to the previous lectures available on our website or the YouTube channel. Okay. So ये तो था about Toreth, how it's helping you. Now let's come back to our discussion. So हम discuss कर रहे थे CRPC. CRPC में we had discussed mainly about investigation, investigation का procedure, definition, difference between investigation, inquiry, trial, cognizable, non-cognizable offences. ये सब हम already discuss कर चुके हैं. And in fact till section number 159 to be very specific यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं. So अब हमें स्टार्ट करना है from section number 160. Okay, so this is also in the chapter of investigation. So ये जितने भी provisions हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं
ये सब आपके इन्वेस्टिगेशन चैप्टर से रिलेटेड हैं। ओके, सो इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप ये ध्यान रखिए, जैसा हमने सेक्शन 2H में पढ़ा था, इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है, और पर्सन ऑथराइज्ड, ठीक है, बट नॉट बाय मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट नहीं करता, ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर रखनी है। ओके, तो ये हमारा चल रहा है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। ओके, so now let's see what does section 160 provide. Section 160 says any police officer making an investigation under this chapter by order may by order in writing require the attendance before himself of any person, ठीक है। पुलिस ऑफिसर के बारे में बात हो रही है कि पुलिस ऑफिसर एक रिटन ऑर्डर बना सकता है। उस ऑर्डर में वो क्या लिखेगा, ये जो ऑर्डर है, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर एंड ही इज कॉलिंग सम पीपल बिफोर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये अटेंडेंस सिक्योर करना चाहता है पुलिस ऑफिसर, कुछ लोगों को अपने पास बुला रहा है पुलिस स्टेशन में, ठीक है, of any person being within the limits of his own or any adjoining station, अपने खुद के जुरिस्डिक्शन वाले लोगों को बुला रहा है या फिर जो उससे एडजॉइनिंग स्टेशन है, मिला हुआ पुलिस स्टेशन है, वहां पर भी अगर कोई पर्सन सिचुएटेड है तो इसे भी ये पुलिस ऑफिसर बुला सकता है। अब ये किन लोगों को बुला रहा है, who have the information, ठीक है, who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case, ये वाला पॉइंट है। किन लोगों को बुला रहा है, जिनको पर्टिकुलर केस के बारे में नॉलेज है, ठीक है, तो विटनेसेस को कॉल कर रहा है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर इज कॉलिंग द विटनेसेस जिन्होंने अलेजेड ऑफेंस को होते हुए देखा है या उसके बारे में उन्हें कोई भी नॉलेज है, ठीक है, who are acquainted with the facts and circumstances of the case and such person shall attend so required। तो अगर किसी भी पर्सन को पुलिस ऑफिसर कॉल करता है फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये सोच करके कि उस पर्टिकुलर पर्सन को नॉलेज है, उसको पता है उस क्राइम से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट, तो उस पर्सन की ड्यूटी है कि उसे पुलिस के सामने अपीयर होना पड़ेगा। ही हैज टू बी प्रेजेंट बिफोर द पुलिस ऑफिसर इन द पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं, प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, ओके, सो अगर कोई बॉय है बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से छोटा कोई बॉय है, दैट इज एन एक्सेप्शन। तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं क्या क्या आपके एक्सेप्शंस हैं इन प्रोवाइजो, बॉय लेस देन 15, ओके, और अबव द एज ऑफ 65, या फिर कोई आदमी है जो 65 से ऊपर है, ठीक है, या वुमेन है, तो वुमेन के केस में कोई एज प्रिस्क्राइब नहीं है, एनी वुमेन, ओके, और अ मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन है। अब ये सारे पर्सन्स कौन हैं, ये वो लोग हैं जिनको उस ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता है, हु आर एक्वेंटेड विद दैट केस, ठीक है, उस केस के बारे में उन्हें कोई भी पॉइंट पता है, एक्वेंटेड विद दैट केस, ठीक है। ये चारों उस टाइप के लोग हैं, तो इनको पुलिस इंटेरोगेशन के लिए बुलाना चाहता है सो दैट वो एविडेंसेस कलेक्ट कर पाए। बट इन पर्संस को क्या रिलैक्सेशन लॉ ने प्रोवाइड किया है, दे शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस in which such male person or woman resides। तो यहाँ पर था नो, ये नो वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इसे अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, नो मेल पर्सन below this age or above this age, women or disabled person shall be required to attend at any place other than the place in which they reside। यानी कि वो जहां रिजाइड करते हैं वहीं पर पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, पुलिस उनको बाउंड नहीं कर सकती कि वो पुलिस स्टेशन जाएं, ठीक है। तो ये एक रिलैक्सेशन दिया गया इन लोगों को कि उनको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर जवाब दें, बल्कि पुलिस की ड्यूटी है कि अगर पुलिस को उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं तो पुलिस जाए उनके रेसिडेंस पर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्लॉज इज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर of the reasonable expenses of every person attending at any place other than his residence। अब यहाँ पर ये प्रोवाइड किया गया है कि ये जो हमारा प्रोवाइजो था, इसके अलावा जो लोग हैं नॉर्मल कैटेगरीज जो हैं,
जहां पर विटनेस को पुलिस स्टेशन जाना है, तो पुलिस स्टेशन जाने के जो एक्सपेंसेस होंगे उसके, ओके, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा है, स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर द पेमेंट, ठीक है, बाय द पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो उनको पेमेंट प्रोवाइड करेगा पुलिस स्टेशन में आने के लिए विटनेसेस को, ठीक है। तो ये ड्यूटी किसकी है, ये पुलिस ऑफिसर की है, बट इसके लिए रूल्स कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये वाले पर्संस की हम बात कर रहे हैं जिनके रेजिडेंस पर ही उनसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो उन्हें कोई एक्सपेंस नहीं मिलेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस जो है वो ऑन द स्पॉट गई, पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए जहां क्राइम हुआ है पुलिस वहीं पर गई, और उस प्लेस पर जितने लोग थे या जो नेबरिंग सिचुएटेड लोग हैं उनके पास पुलिस ऑफिसर्स गए और उन्होंने पूछताछ करी। तो इस केस में एक्सपेंसेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर पुलिस ऑफिसर्स उनको पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं कि आप यहाँ आकर के अपना बयान दो, विटनेसेस को कॉल करते हैं, तो पुलिस को उनको एक रीजनेबल अमाउंट पे करना होगा। अब यहाँ पर रीजनेबल अमाउंट क्या होगा, द वर्ड यूज्ड इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब जितना खर्चा उनका हुआ है टू रीच द पुलिस स्टेशन, ठीक है। अब सपोज करिए कोई पर्सन 15 किलोमीटर दूर रहता है फ्रॉम पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो उसका बस चार्जेस, बस का फेयर जो जो भी बनता है, सपोज उसने जहां बस को एंड किया वहां से एक रिक्शा लिया, दैट चार्ज। सो सिमिलरली ये जो भी वो एक्सपेंसेस मेंशन करेगा उसके अकॉर्डिंग उसे एक रीजनेबल प्राइस मिल जाएगा फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर, ओके। और इस पर्टिकुलर प्रोविजन का पर्पस क्या है, तो पर्पस आपको हर एक प्रोविजन का पता होना चाहिए। तो ये चीज हमें यहाँ से पता चल रही है कि ये किन लोगों को बुलाया जा रहा है, हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोविजन का पर्पस क्या है कि जिन लोगों को नॉलेज है उस ऑफेंस के बारे में उनको एग्जामिन किया जा सके, ठीक है, तो विटनेसेस क्रिएट किए जा सके ऑफेंस से रिलेटेड, चेन ऑफ एविडेंसेस कंप्लीट हो सके, चेन ऑफ एविडेंसेस शुड बी कंप्लीट। उसके लिए क्या कर रही है पुलिस, लोगों से इंफॉर्मेशन ले रही है, ठीक है, इसलिए लोगों को कॉल कर रही है अपने पास, ओके। सो ये है इस पर्टिकुलर प्रोविजन का पर्पस, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। एंड ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बिकॉज जब तक पुलिस लोगों से पूछताछ नहीं करेगी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम टू एनी कंक्लूजन और सबमिट अ प्रॉपर चार्जशीट, राइट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, और जिस किसी को ऐसे कॉल किया जाता है वो मना नहीं कर सकता, ओके। दे हैव टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट, दे हैव टू अपीयर बिफोर द पुलिस। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, section number 161. So any police officer making an investigation under this chapter, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब। तो जनरली क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, आईओ की बात कर रहे हैं, या फिर कोई और पुलिस ऑफिसर अगर उसे ऑथराइज्ड किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक्टिंग ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर। तो दूसरा क्या हो सकता है, ऑफिसर एक्टिंग ऑन रिक्विजिशन ऑफ आईओ, ठीक है, आईओ के थ्रू कोई और ऑफिसर अगर काम कर रहा है या फिर आईओ may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. So जो हमने 160 में देखा था, 160 में क्या कर रहा था पुलिस, पुलिस was calling the witnesses, ठीक है। अब एक बार कॉल कर लिया उसके बाद में क्या होगा, उनका इन्वेस्टिगेशन होगा, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, 161। हम कॉल करेंगे 160 में और एग्जामिनेशन करेंगे उनका 161 में। तो पहली चीज दी है कि पुलिस ऑफिसर ओरली एग्जामिन कर सकता है, यानी कि ओरल क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है, किसी भी उस पर्सन से जिसका पुलिस को लगता है कि उसे इस केस के बारे में नॉलेज है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द केस, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पर्सन की ड्यूटी है कि उसे सबका आंसर देना है, अदर देन द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जनरल रूल क्या है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप विटनेस हैं,
या पुलिस को लगता है कि आप विटनेस हैं तो आपको आंसर करना पड़ेगा। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर देने से आपके खुद के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लग सकता है, पेनल्टी या फोर फीचर हो सकता है, यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेटरी नेचर का क्वेश्चन है, ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेटरी, आपके खुद के अगेंस्ट जा रहा है उसका आंसर, उसके लिए इट इज नॉट कंपल्सरी टू गिव एन आंसर, ठीक है, वहां पर ये बाउंडेशन जो है, ये बाउंड जो लिखा है उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। बाय, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी। क्लॉज नंबर 3, इट सेज द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग, ठीक है। तो पहले क्लॉज में हमने देखा था कि पुलिस पुलिस ऑफिसर ओरल क्वेश्चंस कर सकता है, ठीक है। अब हम क्लॉज 3 में देख रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर राइटिंग में भी कुछ स्टेटमेंट्स को ले सकता है। क्वेश्चंस पूछे गए ओरल, अब वो लिखा है यहाँ पर मे, यानी कि कंपल्सरी नहीं है कि वो सारे आंसर्स को राइट डाउन करे। कि सपोज करिए 10 पीपल आर देयर, ठीक है, जिनको पुलिस ने कॉल किया है, ठीक है, ये 10 पीपल हैं जिनको पुलिस ने कॉल किया है एंड पुलिस को लगता है कि इन सब लोगों को केस के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पता है। अब ये कंपल्सरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर इन सारे लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछेगा उस हर क्वेश्चन के आंसर को नोट डाउन करेगा। कुछ स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर सकता है एज पर हिज डिस्क्रिशन। may reduce into writing any statement made to him in the course of examination under this section। जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें से किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को नोट कर सकता है पुलिस ऑफिसर। एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ ईच पर्सन, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 पीपल, इन 10 लोगों में से 5 लोगों के कुछ स्टेटमेंट्स को पुलिस रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाने होंगे। ऐसा नहीं कर सकता कि वो एक ही डॉक्यूमेंट में ये लिख दे कि मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्या है, सपोज वेयर वर यू ऑन द नाइट ऑफ 16 नवंबर 2022, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया है सभी लोगों से, तो पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन लिखकर एक ही डॉक्यूमेंट में ABCDE ऐसे करके सबका आंसर यही मेंशन कर दे। नो, इवन दो द आंसर कैन बी सेम, अगर आंसर सेम भी है तब भी वो ऐसा नहीं कर सकता। उसकी ड्यूटी है कि उसको हर पर्सन के लिए जिसका भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ट्रायल होता है तो उस टाइम पर हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग प्रोसीडिंग होती है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो गिल्टी है या नहीं है। तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो जिससे कि कोई इनोसेंट पर्सन इम्प्लीकेट ना हो किसी फॉल्स केस में, इसलिए ये एक सेफगार्ड की तरह प्रोवाइड किया गया है कि एक सेपरेट रिकॉर्ड क्रिएट होगा हर इंडिविजुअल के लिए, वो जो भी स्टेटमेंट देगा, ठीक है। और आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मे का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है पुलिस ऑफिसर जितने भी क्वेश्चंस पूछेगा और जितने भी उसके स्टेटमेंट्स आएंगे वो सबको रिकॉर्ड करे। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हो सकते हैं विटनेसेस के जो कंप्लीटली इररेलेवेंट है, जिनसे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कोई हेल्प नहीं हो रहा, ठीक है। उस टाइप के स्टेटमेंट्स को पुलिस ओरली सुनकर ही फोरगो कर सकता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पुट इट अंडर रिकॉर्ड, ठीक है। सो पुलिस ऑफिसर इस सिचुएशन में अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से विटनेसेस के कौन से स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करना है विच कैन बी हेल्पफुल फॉर द प्रोसिक्यूशन केस। ओके, सो ये तो था आपका 161, दिस वी हैव डिस्कस्ड। 160 में आपका अटेंडेंस है, 160 में विटनेसेस को बुलाया जाएगा, 161 में उनका एग्जामिनेशन होगा और कुछ स्टेटमेंट्स पुलिस नोट डाउन भी कर सकता है। और अगर वो नोट डाउन करेगा तो एक सेपरेट रिकॉर्ड हर इंडिविजुअल के लिए क्रिएट किया जाएगा। अब उसके आगे इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन नंबर 162। अब जो हमने देखा कि जो विटनेसेस हैं इन सेक्शन 161, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स बोले पुलिस ऑफिसर के सामने।
अब उन स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है, कि उनमें से उनकी क्या वैलिडिटी होगी, उन स्टेटमेंट्स का क्या हम यूज कर सकते हैं जो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर के सामने दिए गए हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 162. It says no statement made by any person to a police officer in the course of investigation shall if reduced to writing. अब हमने देखा था वहां पर प्रोवाइडेड था आपको 161 में कि कुछ स्टेटमेंट्स को हम नोट डाउन कर सकते हैं, तो उन्हीं रिटन स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। रिटन स्टेटमेंट यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये उस पर्टिकुलर केस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर कोई स्टेटमेंट राइटिंग में लिया गया है तो वो स्टेटमेंट साइन नहीं होगा, नो सिग्नेचर। क्यों? क्योंकि शुरू में वर्ड दिया है नो स्टेटमेंट। नो स्टेटमेंट शैल रिड्यूस टू राइटिंग बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट। उसको साइन करने की कोई जरूरत नहीं है जिसने ये स्टेटमेंट दिया है। नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड इन पुलिस डायरी और अदरवाइज और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज फॉर एनी पर्पज। पहली बात तो ये कि वो साइन नहीं होगा, दूसरी बात वो स्टेटमेंट यूज नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज, किसी भी पर्पज के लिए वो यूज नहीं हो सकता। इसके एक्सेप्शंस हैं वो भी हम देखेंगे अभी, बट पहले जनरल रूल देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट यूज नहीं हो सकता, सेव एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, तो ये एक्सेप्शन हम बाद में देखेंगे। एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस ऑफेंस के इंक्वायरी या ट्रायल में ये स्टेटमेंट यूज नहीं होगा। अब मान लीजिए हमारा जो ऑफेंस है दैट इज मर्डर, ठीक है, और केस है ए वर्सेस बी। तो अब यहां पर मान लीजिए पर्सन सी कोई विटनेस है, उसने स्टेटमेंट दिया बिफोर द पुलिस ऑफिसर। सी मेड अ स्टेटमेंट बिफोर पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर ने इस स्टेटमेंट को राइटिंग में ले लिया। अब ये स्टेटमेंट जो है ये जरूरी नहीं है कि साइन हो, ये साइन नहीं करेगा सी को इस स्टेटमेंट को साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इस पर्टिकुलर ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में दिया गया है, तो इसके इंक्वायरी और ट्रायल में ये यूज नहीं हो सकता। कहाँ ये दिया गया है? इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में। इसके आगे क्या स्टेज आती है? इंक्वायरी। उसके बाद क्या स्टेज आती है? ट्रायल। ये सब हम एक ही केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेम अगर केस है तो उसके इंक्वायरी और ट्रायल में ये स्टेटमेंट यूज नहीं हो सकता। बट इसी से आपको ये पता चलता है कि अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है सी का, ये स्टेटमेंट किसी और ऑफेंस के इंक्वायरी और ट्रायल में यूज हो सकता है, वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मान लीजिए ये इन्वेस्टिगेशन था इस केस का, लेकिन अब हमें पता चलता है कि ये सिचुएशन जो है इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो एक नया इन्वेस्टिगेशन होता है केस नंबर 2 में, ठीक है। तो ये जो केस 2 है, अगर ये स्टेटमेंट इससे रेलेवेंट है सी का स्टेटमेंट, तो ये इस केस के इंक्वायरी और ट्रायल में यूज हो सकता है। तो सेम केस के इंक्वायरी और ट्रायल में नहीं हो सकता, बट किसी और केस के इंक्वायरी और ट्रायल में यूज हो सकता है। तो आपको ये पता चल गया कि जनरल रूल ये स्टेटमेंट यूज नहीं हो सकता, बट कहाँ यूज हो सकता है, उसकी पहली सिचुएशन हमने देख ली, किसी और केस की इंक्वायरी और ट्रायल में। तो हम यहाँ लिखते चलते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस, अदर केस इंक्वायरी और ट्रायल, उसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, आप ये समझने की कोशिश करिए कि क्यों ये लिखा गया है कि ये स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया है ये साइन नहीं होगा और ये यूज भी नहीं होगा। ये इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि पुलिस ऑफिसर के सामने जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है वो जनरली एडमिसिबल नहीं होता। वो क्यों नहीं एडमिसिबल होता? अगर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के सामने ये प्रिज्यूम किया जाता है कि एक एलिमेंट ऑफ फियर होता है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ फियर।
अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये जरूरी नहीं है कि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट हो, राइट, बट स्टिल हम उसको ये कह रहे हैं कि जिससे कि कोई पर्सन आउट ऑफ फियर ऐसा स्टेटमेंट ना दे, उसको वॉलंटरीली वो बोले जो भी वो बोल रहा है, वॉलंटरीनेस को मेंटेन किया जा सके, इसलिए उसको ये फ्रीडम दिया गया है कि अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो तो साइन करने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे कि आप प्रेशर फील ना करो, आप फ्री माइंड होकर के जो कुछ बताना चाहते हैं वो पुलिस को बताएं। ओके, और इसीलिए उसको ये प्रोटेक्शन भी दिया गया है कि अगर आप कुछ भी बताते हैं तो वो उस केस की इंक्वायरी और ट्रायल में यूज नहीं होगा, सो दैट ट्रुथ शैल कम आउट। तो इस पर्पज से ये सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि वो स्टेटमेंट जरूरी होता है, ठीक है, या फिर उसमें मिसयूज का चांस नहीं होता, ठीक है, तो उस केस में ये एक्सेप्शंस आपको दिए गए हैं। Let's read what we have written here. It cannot be used for any purpose because police officer may deliberately record such a statement of witnesses that are beneficial for prosecution. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पुलिस ऑफिसर किसी भी विटनेस को मजबूर करके भी उससे स्टेटमेंट ले सकता है अपने फायदे का, केस को साबित करने के लिए पुलिस ऑफिसर अपनी पावर को मिसयूज कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक एलिमेंट ऑफ फियर होता है जब पुलिस ऑफिसर कोई स्टेटमेंट लेता है, तो जो पर्सन बोल रहा है वो डर की वजह से गलत स्टेटमेंट भी दे सकता है, जिससे कि उसके माइंड में ऐसा कोई फियर ना रहे, इसलिए कहा गया है कि अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो वो यूज नहीं हो सकता, ठीक है, सो दैट ही कैन मेक अ फ्री स्टेटमेंट। उसके बाद क्या दिया गया है, टू प्रिवेंट सच मिसयूज, जिससे कि पुलिस ऑफिसर अपनी पावर को मिसयूज ना कर सके, ये रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड की गई है, बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू दैट केस इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। दूसरे केस में ये यूज हो सकता है। तो ये जो हमारे एक्सेप्शंस हैं ये इसलिए ले डाउन किए गए हैं क्योंकि वहां पर ही पुलिस ऑफिसर, ये वाला पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है केस की, उसके पास पावर नहीं है, वो उसको मिसयूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप मान लीजिए केस 1 का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस ऑफिसर 1, ठीक है, तो ये पुलिस ऑफिसर डरा करके कोई स्टेटमेंट ले सकता है, ठीक है। अब केस 2 में मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है पुलिस ऑफिसर 2 का, ठीक है, अब यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है वो यहाँ तो यूज हो सकता है बिकॉज इस पुलिस ऑफिसर के सामने ये नहीं दिया गया, राइट, तो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ फियर नहीं है, सो ये स्टेटमेंट यहाँ यूज हो सकता है किसी और केस के इंक्वायरी और ट्रायल में, ठीक है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर यूज नहीं होगा, इन स्टेजेस पर यूज हो सकता है, ठीक है। और ये यूज किस तरह से होता है दूसरे केस में, किसी पर्सन को झूठा साबित करने के लिए, यूजुअली कि पहले उसने वहां एक स्टेटमेंट दिया था अब वो कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है, उस टाइप से जनरली यूज होता है। बट इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कोरोबोरेशन, उसकी बात को सही साबित करने के लिए भी यूज हो सकता है कि पहले भी उसने यही स्टेटमेंट दिया था और अब भी वो यही स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं व्हाट डज नेक्स्ट प्रोवाइजो, नेक्स्ट प्रोवाइजो प्रोवाइड। तो नेक्स्ट प्रोविजन क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। अब ये भी हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है, जहां पर स्टेटमेंट इज एडमिसिबल। तो विटनेस क्या है, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस है, प्रोसिक्यूशन की साइड से आ रहा है, यानी कि पुलिस ऑफिसर की साइड से आ रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के साइड से विटनेस आ रहा है। When any witness is called for prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing, उसका statement पहले written down हो चुका है, any part of his statement if duly proved, अगर इसका statement duly prove हो चुका है, duly proved का क्या मतलब है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है, ठीक है, उसने कोई स्टेटमेंट दिया, पीडब्ल्यू ने मेड अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्रॉस एग्जामिन भी कर लिया गया या अपॉर्चुनिटी दी क्रॉस एग्जामिन की, उसके बाद भी यही स्टेटमेंट प्रिवेल कर रहा है, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन सस्टेन हो गया है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट था ये सच्चा था, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद हमें पता चला है, उसको यहाँ लिखा गया है ड्यूली प्रूव्ड। अगर ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रूव हो चुका है
इट कैन बी यूज्ड बाय द एक्यूज्ड। ठीक है, तो ये जो पुलिस ऑफिसर रोल प्ले करता है ये विक्टिम की साइड का केस होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अक्यूज्ड का गिल्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड। तो इसमें अपोजिट पार्टी कौन होती है? डिफेंस या एक्यूज्ड। डिफेंस का मतलब एक्यूज्ड पर्सन। तो ये जो स्टेटमेंट है, प्रूव्ड स्टेटमेंट पीडब्ल्यू का, इस वाले विटनेस का, उसको कौन यूज कर सकता है? एक्यूज्ड यूज कर सकता है इस स्टेटमेंट को। सेकेंडली कौन यूज कर सकता है? विद द परमिशन ऑफ कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन। तो ये क्यों यूज करेगा इस विटनेस को? इसे गलत साबित करने के लिए। ठीक है, सेकेंडली पीडब्ल्यू को यूज कर सकता है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन खुद इसको यूज कर सकता है। वैसा कब होगा? जब ये विटनेस हॉस्टाइल हो गया है। तो अगर ये हॉस्टाइल विटनेस है तो ये खुद प्रोसिक्यूशन अपने ही विटनेस को झूठा साबित करने के लिए भी इसके स्टेटमेंट को यूज कर सकता है टू कॉन्ट्रडिक्ट सच विटनेस। यहां पर सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए ये स्टेटमेंट यूज हो रहा है, ओनली कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब उसे गलत साबित करने के लिए, कोरोबोरेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड सच विटनेस इन एनी मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 145 एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज सो यूज्ड। तो अब हमें यहाँ पे पर्पस पता चल गया किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है और कौन यूज कर सकता है। एक्यूज्ड यूज कर सकता है कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, सिमिलरली प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। और अगर वो ऐसा यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा? एनी पार्ट देयर ऑफ मे ऑल्सो बी यूज्ड इन री एग्जामिनेशन। तो जो स्टेटमेंट है वो री एग्जामिनेशन के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज अलाउड है, री एग्जामिनेशन के लिए भी अलाउड है। री एग्जामिनेशन किसका हो रहा है? पीडब्ल्यू का, इसी विटनेस का। ठीक है, ये पता करने के लिए कि विटनेस सच बोल रहा है या नहीं। ठीक है, बट फॉर द पर्पज ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर्ड टू इन हिज क्रॉस। तो ये री एग्जामिनेशन सिर्फ उसी पॉइंट पर होगा जिससे रिलेटेड इसे क्रॉस किया गया है। ठीक है, इसकी क्रेडिबिलिटी को हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये री एग्जामिनेशन में आंसर कर सकता है। ठीक है, सो अगर आप इस प्रोवाइजो को और सेक्शन 162 क्लॉज 1 को पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस सिचुएशन में 161 का स्टेटमेंट यूज हो सकता है और किस सिचुएशन में यूज नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, स्पेशली फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये क्लैट पीजी के लिए मे बी इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ये बहुत ही टेक्निकल प्रोफेशन है, बट उसके अलावा जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी, जहां पर डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, वहां पर ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बट स्टिल फॉर क्लैट पीजी ऑल्सो आपको डेफिनेटली नॉलेज होनी चाहिए इन इम्पोर्टेंट प्रोविजंस के बारे में, और ये पता होना चाहिए कि सेक्शन की लैंग्वेज क्या कह रही है। बिकॉज सीआरपीसी का क्या रूल है, यहाँ पर जो लैंग्वेज है वही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, टेक्स्ट बुक से ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लेटेस्ट केसेस पढ़ें और उस लैंग्वेज को समझें। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो मोर देन हाफ ऑफ योर जॉब इज डन। ठीक है, अगर आपको कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फिर भी नहीं मिल पाती है देन यू कैन डेफिनेटली रेफर टू द टेक्स्ट बुक, बट अभी के लिए इस पॉइंट पर व्हेन यू हैव जस्ट 20 days so it's very difficult for you to go back to the textbook of each and every book, right? So now we can proceed ahead. 162(2) क्या कहता है? Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling in 32(1). So again ये भी हमारे exceptions हैं। Exceptions का मतलब statement under 161 is admissible and can be used। ठीक है, जनरल रूल हमने पढ़ा था कि यूज नहीं हो सकता, बट इन सिचुएशन में यूज हो सकता है। क्या है वो सिचुएशन? सेक्शन 32(1), ओनली क्लॉज 1 इज देयर। ठीक है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो स्टेटमेंट एक डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में फॉल करता है तो भी वो यूज हो सकता है। सिमिलरली अगर वो डिस्कवरी स्टेटमेंट है सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग, अगेन वी कैन यूज इट। ओके, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
एक्सप्लेनेशन सेज इफ देयर इज ओमिशन टू स्टेट, ठीक है। तो 161 में हमने देखा कि विटनेस जो स्टेटमेंट देगा पुलिस ऑफिसर उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। बट अगर पुलिस ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछा है, देयर इज सर्टेन क्वेश्चन, और इसका आंसर नहीं दिया विटनेस ने, ही इज साइलेंट, ठीक है। तो ये जो ओमिशन है अबाउट एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड, केस के इंपॉर्टेंट फैक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस साइलेंस को भी हम कॉन्ट्राडिक्शन में यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? इफ द सेम अपीयर्स टू बी सिग्निफिकेंट एंड अदरवाइज रेलेवेंट having regard to the context in which such omission occurs and whether any omission amounts to contradiction shall be a question of fact. ये हमें केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या साइलेंस के बेसिस पर हम उस इंसान को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, बोला है कुछ, उसके बेस पे तो डेफिनेटली आप कॉन्ट्रडिक्ट हो सकते हैं। बट अगर आपने कुछ नहीं बोला, यू आर साइलेंट, स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन बी कॉन्ट्रडिक्टेड। अब इसके एग्जाम्पल समझिए। सपोज करिए जो फैक्ट हमें मेंशन किए गए हैं एफआईआर में, ठीक है, एफआईआर में ए पार्टी ने बोला, ए टोल्ड पुलिस, ए कौन है यहाँ पर? इंफॉर्मेंट है, ठीक है। ए ने पुलिस को बोला कि बी हर डॉटर, ठीक है, was ravished and raped, ठीक है, उसके साथ में ये सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, ठीक है। ए ने बताया, ए कौन है? मदर है। फिर उसने ये भी बताया कि उसे कैसे पता चला। अब आप ये सोचेंगे ए को कैसे पता चला कि बी के साथ ये ऑफेंस हुआ है। सो ए ने ये बताया कि बी टोल्ड हर आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, ठीक है, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ वहां से वापस आने के बाद, ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस, ऑन द डे ऑफ ऑफेंस, ये डिटेल उसने बताई एफआईआर में, ठीक है। एंड फर्दर बाकी की स्टोरी भी मेंशन करी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ए से, ए कौन है? मदर। मदर से यहाँ पर पूछा गया स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते टाइम कि क्या बी ने उसको बताया था कि उसके साथ में ये ऑफेंस हुआ है। वो साइलेंट रही, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाता है कि क्या जब भी अपने स्कूल से वापस आई थी तो उसने आते ही आपको बताया था कि उसके साथ में ये ऑफेंस हुआ है। अगेन शी इज साइलेंट। सो इस टाइप के जो मटेरियल क्वेश्चंस है उस पर अगर कोई विटनेस साइलेंट रहता है तो कोर्ट उस स्टेटमेंट, उस साइलेंस के बेसिस पर भी कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, ठीक है। सो ये है, बट यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर ओमिशन की वजह से कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है या नहीं, ये केस टू केस बेसिस पर वैरी करेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ओमिशन है क्या वो किसी मटेरियल क्वेश्चन का है या ऐसे ही कोई नॉर्मल फैक्ट है जिस पर वो साइलेंट रहा है पर्सन, ठीक है। तो अगर आप साइलेंट हैं तो वो स्टेटमेंट भी आपको कॉन्ट्रडिक्शन के लिए लायबल कर सकता है, ओके। तो साइलेंट रहने से ये नहीं है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ओके। बिकॉज अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आपको कोई बात की इंफॉर्मेशन है, सो यू शुड हैव टू टेल, ठीक है, आप उसमें साइलेंट नहीं रह सकते। नाउ लेट्स सी व्हाट द अदर प्रोविजन सेज। तो ये तो था हमारा 162। सो 162 इज डन गाइस, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दैट इज 164। दिस इज अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन। अब आपको ये पता है इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोवाइडेड है सेक्शन 26 में कि नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो पुलिस ऑफिसर के सामने जो भी कन्फेशन दिया जाता है वो एडमिसिबल नहीं है, इट शैल नॉट बी प्रूव, उसे प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट यहाँ पर हम कन्फेशन को ही रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो ये कैसे अलाउड हो रहा है? इसलिए अलाउड हो रहा है क्योंकि जो कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज अ मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यहाँ पुलिस नहीं रिकॉर्ड कर रही, मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ सेवरल सेफगार्ड, बहुत सारे सेफगार्ड से प्रोवाइडेड है, उनके
केयर करते हुए जब ये स्टेटमेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ कन्फेशन ये रिकॉर्ड हो रहा है, सो देन दैट इज एडमिसिबल। ठीक है, अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ जो रोल है वो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का, या फिर अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो इट इज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। बट द पॉइंट इज कि ये मैजिस्ट्रेट अपना काम किस स्टेज पर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर। अभी इंक्वायरी या ट्रायल की स्टेज राइज नहीं हुई है, तो ये क्या स्टेज है, पुलिस ऑफिसर के पास एक्यूज्ड है, ठीक है, इंटेरोगेशन के लिए। एक्यूज ने कुछ स्टेटमेंट्स बोले पुलिस ऑफिसर को, कुछ भी स्टेटमेंट्स 1 2 3 4, इसमें से स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो अपने गिल्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक्यूज ये कह रहा है कि मैंने ये क्राइम किया, वो कन्फेशन कर रहा है, खुद का गिल्ट बता रहा है। ठीक है, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, व्हाट ही शुड डू, उसको क्या करना चाहिए, उसको ये स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाना चाहिए। वो क्या करेगा, वो एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगा और तब उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने बोलना होगा कि दैट सेम स्टेटमेंट अगर वो बोलता है देन इट अमाउंट्स टू कन्फेशन अंडर 164। बट कोई कंपल्शन नहीं है, आप उस एक्यूज्ड को कंपेल नहीं कर सकते कि मैजिस्ट्रेट के सामने जा करके भी कन्फेस करो। एंड प्रैक्टिकली यही होता है, लोग पुलिस के सामने तो कन्फेस कर लेते हैं बट जब कोर्ट में जाते हैं तो वो कन्फेस नहीं करते। तो यहाँ पर जो है ये वॉलंटरीनेस को मेंटेन करना है हमें, अगेन द सेम थिंग। ओके, सो वॉलंटरीनेस रहे एक कन्फेशन के रिकॉर्डिंग में, इसके लिए सेक्शन 164 डिफरेंट सेफगार्ड्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिकॉज हम जो कन्फेशन यहाँ रिकॉर्ड करवा रहे हैं मैजिस्ट्रेट से, दैट इज नॉट अ फोर्सफुल कन्फेशन। ठीक है, जैसे पुलिस यूजुअली थर्ड डिग्री और एनी अदर सच मेथड अडॉप्ट, वो ऐसी चीजें अडॉप्ट करती है कन्फेस करवाने के लिए। तो उसका क्या पर्पज है, वो स्टेटमेंट यूज नहीं हो सकता, यूज तभी होगा जब जज के सामने वो कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया जाए। ओके, सो क्लॉज 1 सेज एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में whether or not he has jurisdiction। अब ये चीज भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है कि उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास उस केस का जुरिस्डिक्शन हो, ही मे हैव और मे नॉट हैव, वो तब भी कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। may record any confession or statement made to him in the course of investigation। so investigation का stage है, but statement या confession किसके सामने record हो रहा है, magistrate के सामने। under this chapter or under any other law for the time being in force or at any time afterwards, investigation के बाद भी हो सकता है, but before the commencement of inquiry or trial, इस स्टेज से पहले की ही स्टेज चल रही है। ठीक है, अभी इंक्वायरी और ट्रायल पे हम नहीं आए, तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज चल रही है बेसिकली, तब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रोवाइडेड इन प्रोवाइजो, इट सेज provided that any confession or statement made under this subsection may also be recorded by audio video electronic means in the presence of advocate of accused। so ये भी एक प्रोविजन है, अगर मान लीजिए एडवोकेट ये कहता है कि भाई मेरी प्रेजेंस भी रिक्वायर्ड है, वो ये देखना चाहता है कि कोई कंपल्शन तो एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, इट इज ऑल वॉलंटरी, तो हम उसको भी अलाउ कर सकते हैं एक्यूज के एडवोकेट को कि वो वहां प्रेजेंट हो सकता है। एंड उस स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग के टाइम पर ऑडियो एंड वीडियो कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड। सो ये यहाँ पर मे वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, तो कोर्ट इसे अलाउ कर सकता है। Provided further, no confession shall be recorded by the police officer। तो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये तो क्लियर है। बट यहाँ किस पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ऑन whom any power of magistrate has been conferred। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है उसके पास मैजिस्ट्रेट की पावर है, वो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जनरल पुलिस ऑफिसर तो कर ही नहीं सकता इन एनी केस, बट जो मैजिस्ट्रेट की पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है वो भी नहीं कर सकता। वाई, बिकॉज हमें फियर का एलिमेंट हटाना है, हमें वॉलंटरी कन्फेशन चाहिए, डर की वजह से नहीं चाहिए। ठीक है, सो किसी भी पुलिस ऑफिसर को अलाउ नहीं किया गया है कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए बाय द लॉ। सो ये भी एक टाइप का सेफगार्ड है, ठीक है, जिससे कि एक्यूज्ड के राइट्स की भी प्रोटेक्शन हो सके। ऑलराइट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लॉज क्या कहता है।
Clause 2 says the magistrate shall before recording any such confession, अब ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि उसे क्या करना है, कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले उसे एक्यूज्ड को क्लियरली बताना है, ठीक है, he is not bound to make a confession, कि कन्फेशन करना एक्यूज की कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक है, अगर वो करता है तो वो उसकी अगेंस्ट यूज हो सकता है, ठीक है, तो उसकी चॉइस है, ये सारा डिक्लेरेशनों से दिया जाएगा, अगेंस्ट हिम, कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम, ये चीज मैजिस्ट्रेट क्लियरली बताएगा. And the magistrate shall not record it unless upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily. ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो खुद को सेटिस्फाई करे कि एक्यूज वॉलंटरीली ये कन्फेशन दे रहा है, वो तभी रिकॉर्ड करेगा. अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो किसी भी डर या और किसी सिचुएशन से दे रहा है कन्फेशन, तो ऐसा कन्फेशन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड नहीं करेगा. तो ये ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करे कि इस केस में एक्यूज अपनी मर्जी से कन्फेशन दे रहा है या नहीं. ओके. Now next clause says, if at any time before the confession is recorded, the person appearing state that he is not willing to make, ठीक है, अगर एक्यूज ने मना कर दिया कि मुझे कन्फेशन नहीं देना, तो उसके बाद इस एक्यूज को वापस पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड इन प्रैक्टिकल सिनेरियो कि अगर ऐसे एक्यूज को आप वापस पुलिस कस्टडी में भेजेंगे, सो दे विल एक्सरसाइज टॉर्चरस मीन्स अगेंस्ट हिम, वो उसको टॉर्चर करेंगे इस चीज के लिए कि उसने कन्फेशन क्यों नहीं दिया जज के सामने, और अब वो दे या उसको किसी भी तरह से वो हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसलिए कहा गया कि अगर वो मना कर देता है कन्फेशन देने से तो उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा. फिर उसको क्या भेजा जा सकता है, जुडिशियल कस्टडी में, ओनली जुडिशियल कस्टडी, अगर वो रिफ्यूज करता है कन्फेशन देने से, ठीक है. सो अगेन दिस इज अ सेफ गार्ड, ठीक है. तो जैसे आपसे पूछा जाता है इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्हाट आर द राइट्स ऑफ द एक्यूज, तो आप इस सेक्शन को उसमें भी यूज कर सकते हैं कि जो बेनिफिशियल प्रोविजंस हैं हमारे लॉ में एक्यूज के फेवर में, एक्यूज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, दोज आर आल्सो गिवन इन 164, ठीक है. अब नेक्स्ट क्लॉज क्या कहता है, एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन 281, ठीक है, इस सेक्शन में एक मैनर प्रोवाइड है, उसी के अकॉर्डिंग कन्फेशन रिकॉर्ड होगा, और जब कन्फेशन का रिकॉर्डिंग हो जाएगी उसके नीचे ये लिखा रहेगा, ठीक है, ये किसकी साइड से है, ये जज की साइड से. आई हैव एक्सप्लेन टू हिम दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. तो ये एक टाइप का डिक्लेरेशन है जिसको जज को फॉलो भी करना होगा और मेंशन भी करना होगा, एंड देन इट हैज टू बी साइंड बाय हिम. सो अगेन दिस इज अ सेफगार्ड इन द फेवर ऑफ एक्यूज्ड. उसके बाद 164 क्लॉज 5 सेज एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन, ठीक है, हमने 164(1) में देखा था कि दो चीजें रिकॉर्ड हो सकती हैं बाय मैजिस्ट्रेट, या तो कन्फेशन या फिर कोई और स्टेटमेंट. अब कोई और स्टेटमेंट इन्होंने दिया, इसका मतलब ये कन्फेशन नहीं है, यानी कि पर्सन अपनी गिल्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी और पॉइंट पे बात कर रहा है. इट इज दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बट ये भी रेलिवेंट है, ठीक है, और ये एविडेंस में यूज हो सके इसलिए हम इसे मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा रहे हैं. सो नाउ इट सेज एनी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन, तो हम यहाँ पर सिर्फ इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, अदर देन कन्फेशन shall be recorded in such manner provided for the recording of evidence as in the opinion of magistrate best fitted to the circumstances of the case. इस स्टेटमेंट को मैजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्ड करेगा, बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट को प्रॉपर वे लगता है उसके अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग होगा. कन्फेशन के लिए तो हमने देख लिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको रिकॉर्ड करने के लिए. पहले उसे कहा जाएगा कि आप बाउंड नहीं है ऐसा कन्फेशन देने के लिए, और अगर आप देते हैं तो आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है, ये सारी चीजें दी गई हैं. और फिर उसके बाद में एक फुट नोट में लिखा जाएगा डिक्लेरेशन, वो साइन होगा मेमोरेंडम. सिमिलरली फॉर द स्टेटमेंट दे आर सेइंग कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है कि कैसे रिकॉर्ड होगा, दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, वो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा. एंड मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो ओथ एडमिनिस्टर कर सकता है, ठीक है, ओथ के बाद पर्सन स्टेटमेंट देगा, ठीक है.
ओथ इज अलाउड। ओथ क्यों अलाउड है? क्योंकि ये एक कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है, नॉट अ कन्फेशन। तो अगर ये किसी पर्सन के ओन गिल्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहा, तो इस केस में ये क्या माना जाएगा? एडमिशन। ठीक है, इस केस में ओथ अलाउड होती है। ठीक है, now next is for confession oath cannot be administered because an accused cannot be compelled to say anything against him. कन्फेशन के केस में ओथ नहीं होती क्योंकि हम एक्यूज को ये कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे, और कन्फेशन का मतलब वही होता है कि अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट देना। बट यहाँ ये कोई भी स्टेटमेंट है अपार्ट फ्रॉम कन्फेशन, तो यहाँ पर ये फियर ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपल्शन नहीं है, इसलिए ओथ एडमिनिस्टर की जा सकती है। ओके, सो इस केस में ओथ अलाउड है। अदर स्टेटमेंट्स के केसेस में तो अगर कोई झूठी कसम खाता है तो अगेन उसके अगेंस्ट केस चल सकता है, उसको आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं उस बेसिस पर विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेटमेंट, बट कन्फेशन के केस में ऐसा नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज क्लॉज 5 कैपिटल ए। सो इसमें क्या प्रोवाइडेड है? इन केसेस पनिशेबल अंडर 354, 354 के डिफरेंट क्लॉजेस भी यहाँ मेंशन है, 375 यानी कि रेप से रिलेटेड क्लॉजेस मेंशन एंड 509। सो बेसिकली ये सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, इनके बारे में कोर्ट लॉ क्या कहता है? The judicial magistrate shall record the statement of the person against whom such offense has been committed. Against whom इसका मतलब हम यहाँ विक्टिम की बात कर रहे हैं कि विक्टिम का स्टेटमेंट, विक्टिम्स स्टेटमेंट जज कैसे रिकॉर्ड करेगा? As soon as the commission is brought to the notice of the police, ये स्टेटमेंट जल्द से जल्द रिकॉर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस विक्टिम को खतरा होता है फ्रॉम द एक्यूज्ड, इसलिए इसका स्टेटमेंट ये जरूरी है कि कोर्ट के थ्रू जल्द से जल्द रिकॉर्ड हो। ओके, नाउ प्रोवाइजो सेज इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, ये अगेन हम विक्टिम की ही बात कर रहे हैं, ये विक्टिम जो अपना स्टेटमेंट दे रहा है मैजिस्ट्रेट के सामने, अगर वो डिसेबल्ड है, परमानेंट, टेम्परेरी, मेंटली, फिजिकली, किसी भी टाइप से अगर वो डिसेबल्ड है, मैजिस्ट्रेट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर, इनकी हेल्प मैजिस्ट्रेट ले सकता है जिससे कि सही कन्फेशन रिकॉर्ड हो पाए। ठीक है, नाउ प्रोवाइडेड फर्दर if the person making the statement is temporarily, permanently, mentally, physically disabled, again हम disabled person की बात कर रहे हैं। अगर पर्सन हमारा डिसेबल्ड है जो स्टेटमेंट दे रहा है बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन विद द असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर शैल बी वीडियोग्राफ। सो ऐसा स्टेटमेंट वीडियोग्राफ भी होगा। ठीक है, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, अगेन डिसेबल्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, shall be considered a statement in lieu of examination in chief such that Meeker can be cross-examined on such a statement without the need for recording the same at the trial. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप समझिए। अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, ये पर्सन इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर, अभी स्टेज है हमारी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर ये मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है, और ये डिसेबल्ड पर्सन है, माइंडेड, ठीक है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। उसको क्या रिलैक्सेशन दिया है कि ये जो स्टेटमेंट है इसका, ऑल्दो ये इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर दिया गया है, लेकिन इसको ये बेनिफिट दे रहा है लॉ कि ये स्टेटमेंट इसका एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा, यानी कि ये ट्रायल में जो आपसे स्टेटमेंट रिपीट पूछा जाता है एग्जामिनेशन इन चीफ में, वही माना जाएगा, और इसी के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, इसी के बेस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। यानी कि इस डिसेबल्ड पर्सन को ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रायल में दोबारा अपीयर हो और फिर एग्जामिनेशन इन चीफ के टाइम पर वो अगेन सेम स्टेटमेंट दे, इसी स्टेटमेंट को हम ये वाला स्टेटमेंट मान सकते हैं। ऐसा इसलिए प्रोवाइड किया गया है क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन होता है, बाय द टाइम द ट्रायल हैपेंस, जब तक ट्रायल का टाइम आता है, या तो उसकी कंडीशन डिटीरियोरेट हो जाती है और दैट पर्सन डाइज, ऐसा होता है कई बार। ठीक है,
सो उस केस में अगर मान लीजिए हम ये अलाउ नहीं करेंगे, उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कंसिडर नहीं करेंगे, तो उस स्टेटमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर रिकॉर्ड हुआ है उसकी रेलेवेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक्यूज को पनिश करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ये प्रोवाइड किया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर उसने स्टेटमेंट दिया है बिफोर मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है, इसको हम ट्रायल के टाइम पर भी यूज कर सकते हैं विदाउट आस्किंग हिम टू अपीयर अगेन। उसको ये नहीं कहेंगे आप दोबारा अपीयर हो, इसी स्टेटमेंट को हम एग्जामिनेशन इन चीफ की तरह यूज कर सकते हैं और इसी स्टेटमेंट के बेस पे क्रॉस हो सकता है, अल्टीमेटली केस डिसाइड हो सकता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सेक्शन 5 कैपिटल ए, 164 का क्लॉज 5 कैपिटल ए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा सेक्शन नंबर 167, बट दिस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, सो दे कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड यू विल गेट a reply from us. Okay, if you like these classes, please subscribe to our channel and keep watching live sessions on Raftar series. Okay, see you guys. Bye. Take care.